kaisa khaksangma koktun tei hamarini koktun no joto sini media ni bisingti joto baisang connectivity khlayan thangtongo obo angkiaboti hai nirok sali satamni sakang nukhna ani kaisa Facebook page so te obo bunirok nukhna news media ro kasai phimani jesang thangnai salo edisini advisor Captain GS Rathe edisio resignation romani boniulo sang pulo tawara program o malai pro boy kamang ma kok salaika boni kamang ma development sam tangan ro boni je interested tongmani boni je capacity tongmani boni je vision technician tongmani abrong no nugui belai khena angguno khafurkha samung ni bage angka abrong no tei bakaisa ni Facebook page ang sikha je Tripurahani development borokni development hani hamari ni samung khainani ni khaw tongkhangke TRPC ni bisinti bikoma samung tongo borobisang khai mano abani reply bani rong nukna jotono video viral bor hortika jotono sungnu kanoni media ni bisinti sungnu kha je samung Tripurahani bagai lukurong ni bagai hani bagai samung khainani bagai belai kheboni khagana je sung samung rong mani na botlangna ni bagai Tripurahano hamari khainani bagai boni bakhawari dito abani bagai ne bo tini malagi kok salainai tei bahai samung tangnai sung buskangni ha tei tofani hamari gotalang lai manai abono salai sing buskangni samung nai abrono tin tinor rinjaka ingka ang pilane sini ngrogranai sangoro jotono sini lainai tini se sangoro nyo tongsunai jeto mo tiar bisini samung ni related khesi sung samung ororing lai mani ba pilana ani sakbai thangniro joto sigu se te bisini chairman hisabe gai ang patal panna jomatia yang tonggo sini Robji das sini ex principal Nabodoini intellectual person yang siang sai penai sini deputy manager sini headquarter ni Santosh Deborma te sini social worker sini Baikobita Jamatia te yang di sengjoton sai mana tini ni nograi joton sini all subject ni tini nograi sini Captain GS Rathe ji te sini tonggora nigo obisitrai sini TRPC ni deputy manager west ni te sini tonggora nigo sini social worker social activist sini Baisimadi obahai lagi seng tini ora nigo asubai tongoni jora engka tabo nirona sana ni musukmani kamate hai Tripurahawan development khainani je borok musuknai Tripurahani hamari to bonani je borok musuknai borok jo tabani yang paksa ke sung united di samung khainani bagai ang nije personally belai ken interested te o samuno khai family loi te khai thantinai abade bagai ne sung GS Rathe jine sung tini boni o khainani musukmani Tripuraha do fani bagai bo samung khainani musukmani te boje khainani imang tongmano khaimai akhlagi bo ya kagai ba thangani naimani abono sung tewaisa continue odo fani bagai samkhairan bagai ne bono rinjaka tei sung saimano o Tripuraha o kabang masini sam hamari sung tabo lamago sung nugu je mudini na harmong bai Tripurano development khainani mudini hamari bai sung Tripurano super state khainani bagai mudini vision and mission kaisan Tripura super state thun Tripura joto bai baksa basai mathun aja go sung jotono sakha laigene tabo sung TRPC ni bisinti bai kemni sini socio economics na tei bai growth khaima sini interior area go বিশেষ করে sini জনজাতি people area go deprived borok rok no bahai ke development khaimana abla tei sakha lagi sing pailai yang tu tei TRPC ni gi sing oro ko bulai sanani klaiga asake TRPC ni bisin tei sing samung kabang tangi mana jeta sing tangi ma mana sing tangi manya kho abni bagai sing tei borok kabang nangge kereng nangge sakhanai borok nangge kha kaham nangge nukhor mari gnang borok nangge tei khai manai chuk nai borok nangge Aro ni bisingo Captain Rathe no koroksan nukha bo khai bemana kha begnang subusu abni bagai ne o samungo sung kerengni samung tangnani bagai bono ringjaka abni bagai tini o Tripurahas ni bagai bo belai khena kepal kaham sung hoi mana sini o hawa tonggui sung tangbaya saro lai me yang tongma jagao phatar haste ni phagi sini bagai samung tangnai kha kotor war bai phainero sung no hamjagai khario bai phainero no sung platform rogui maya obo hai sung platform rogui boroni bisinti pannanani boroni bisinti te bisini samuno sarai tisanani obo sini daitto klai abni bagai ne ang corruption development na hamjanai muri corruption development Tripurani imang hamjanai Rathaji boni na harmung Tripurani oroni borok rok borok socio economics te development ntung abono bo na hari samkhai pia boni samung abni go bo khaisuk baile liya kene boroni tam ngai kabanan sanan thanya abo borok mo saimanai pia bo hai samung khainai fatani phaigai particular indigenous people oni bagai samung khainai hene phainai sung belaina man thogia tugu pia bo hai borok sukjak borok no sung tangi yakai honai abni bagai TRPC ni bisinti kabang samung tangi mana o TRPC ni bisinti nok nukungbai joto jonjati area ni nukungbai ni sung kerengni mana te hamari betabo sung tanglai tongo tangbai maya pailai yanglai tongo
Abni bangai sing khanaka rabar kai tomani bisingo tabo sing agor botakle 80,000 agor kane. Sini forest department sini chief minister Subamani bai free of cost takle bising kai finai agor. Boni pore sing wa 200 family wa bakai dai already sing naward bai kok salai bitha. Tei bas kanggo sondon kai nei sondoni bangai team phai jongo tissue culture tak biotechnology bai tabo industry tam honai tabo ni jokha technology ni ju industrial life o jagawa sini o tripura ho basang sini sara bharatbor bai baksa basa mai fan jesak mansak sing borai baksa basa re thangi mano abo hai sing tabo sakhalai tongma jaga kereng nangu khagrang borok nangu singno lama phuruk banai borok nangu omati hai borok bangma sing nangu kisaya a jagawono strategic corruption nang kok bani borok nei bono sing ringni tini mato bori hambai te ang kha khaige haste ni nukuro je hamari nai nei tripura ni bagai unnoti nai nei Tripura ni bangai tongkesang nai nei bikha mukti Tripura nai nei Tripura sarapni nok nogo rang bial tang thung nai nei abrok joto no khatung khajake sing development ni imango chenai tongmani yaprigo joto no baksak lagi kharogoi samtang nai ni ang khasongo hambai मैडम कि अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है और मैं कोई ऐसा बयान दे दूं कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अपोजिट में चला जाए तो उस चीज़ के ऊपर मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा आज। लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें होती हैं कि जो आपका जो रेजिग्नेशन है, रेजिग्नेशन में बहुत चीज़ें होती हैं कि अगर आप एक काम कर रहे हैं, आपको काम नहीं करने दिया जा रहा, वहाँ पे एक जो विज़न है जिसके लिए जनता ने एक जो पॉलिटिकल जो नुमाइंदे हैं उनको चुन के भेजा हुआ होता है, वो लोग जनता के फेवर में काम नहीं करना चाहते, बहुत चीज़ें होती हैं इसके अंदर। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मेरा 1 साल और 2 महीने का जो टेन्योर था TTDC में, मैंने अपना बेस्ट दिया वहाँ पे, और शायद इतना मैंने बेस्ट दिया कि जो इवन जो वहाँ की जो सरकार है वो 10 साल में भी उतने लोगों को नहीं दे सकती जो मैंने 1 साल और 2 महीने में दिया। मैं सिंगल हैंडेडली 1100 करोड़ रुपए का अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर इन्वेस्टर्स को लेके आया मैं वहाँ पे। लेकिन जब वो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जब वो अच्छा इन्वेस्टर के अलावा भारत सरकार NSDC जैसा जो ऑर्गेनाइजेशन है जो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर जो काम करता है, वो अगर ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे आ रही हैं, वो तिपरासा के लिए जो हमारा जनजाति है उनके लिए, उनके कल्याण के लिए अगर कोई काम करना चाहती हैं, तो उन फाइलों के ऊपर अगर उन फाइलों को दबा के अगर आप बैठेंगे, अगर उनका काम नहीं हो पाएगा, अगर उनको हम सामाजिक और आर्थिक उत्थान नहीं दे पाएंगे, तो फिर मेरा कोई रोल नहीं है वहाँ पे। मैं काम करने आया हूँ, मैं उनसे कुछ नहीं लेता। TTDC से मैंने आज तक 1 रुपया नहीं लिया। लेकिन देखिए, एक कहावत होती है, आइदर यू परफॉर्म और पेरिश, या तो आप काम करिए या छोड़ दीजिए। वो 2 लोगों के लिए होता है, या तो जो नकारा आदमी होते हैं जो कुछ नहीं करते सिस्टम के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर, उनको छोड़ देना चाहिए। अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनकी मंशा काम करने की नहीं है, उनको डिपार्टमेंट से खुद ही इस्तीफा देके निकल जाना चाहिए। दूसरी कैटेगरी आती है कि आप वहां पे अपना पूरा मन लगा के काम कर रहे हैं, लेकिन जो वहां पे जो सरकारी जो तंत्र है, जो वहां जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो आपको काम नहीं करने दे रहे हैं, तो वो दूसरी स्थिति आती है। तो मैं उस दूसरी स्थिति के अंदर फिट होता हूं कि मैं वहां पे काम करने के लिए गया और वहां पे मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत चीजें किया, और जहां पे जो चीजें हैं जो ADC खुद नहीं कर पाता था, वो मैं पर्सनल कैपेसिटी में करता था। चाहे लोगों को व्हीलचेयर बांटना हो, चाहे उनको अगर कोई बच्चे का एजुकेशन है उनको स्कूल में एडमिट करवाना हो, मैं अपनी जेब से मैंने लोगों का फीस भरा है। वहां पे जो ड्रग एडिक्शन के लिए मैंने ही, आई वॉज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस वहां पे जो आपका ड्रग आपका अवेयरनेस एंड रिहेबिलिटेशन, जो वहाँ का जो फोरम था, जो कमेटी था, वो मैंने गठन किया। हमारे जो CO साहब जो CK जमातिया जी थे उनके साथ मिलकर। लेकिन क्या हुआ उसके अंदर, मैं आपको छोटा सा एक वाक्य बताना चाहता हूँ कि जो हमारा त्रिपुरा है, आज जो हमारा त्रिपुरा का यूथ है वो ड्रग से जूझ रहा है, सबसे क्रिटिकल प्रॉब्लम है। तो एक बार मैं CO साहब और एक जो अभी MLA बने हैं, जो पहले एक ऑनरेबल EM थे, वहाँ पे हम लोगों ने एक सेमिनार का आयोजन किया। हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ हंड्रेड्स की संख्या में, 100 की संख्या में वहाँ पे महिलाएं थी, हमारी बहनें थी, हमारे युवा साथी थे। वहाँ पे हमने उनको एड्रेस किया। अगले दिन हमारे पास फोन आता है, हमारे CO साहब के पास फोन आता है, वहाँ के जो MDC से उनका, वो जो वहाँ के जो MLA थे उनका, कि हमारी बगैर परमिशन के आपने ये प्रोग्राम क्यों किया वहाँ पे। इट वॉज नॉट ए पॉलिटिकल प्रोग्राम। अगर
वहां पे जो युवा हमारा है, अगर हम उनको सशक्त करने की बात करते हैं, अगर हम उनको एक कन्विंस कर रहे हैं कि आप जो ड्रग्स का रास्ता छोड़िए, उसमें क्या गलत बात है? किसका परमिशन चाहिए? अच्छा काम करने के लिए किसी का परमिशन नहीं चाहिए। लेकिन जब आप अच्छा काम करते हैं तो उसको पॉलिटिकल रंग दे दिया जाता है। मैं पॉलिटिक्स करने नहीं आया, पॉलिटिक्स मैंने बहुत देखा, मैंने बचपन से पॉलिटिक्स देखा है। मैं पॉलिटिक्स करने नहीं आया यहां पे, मैं जनता को कुछ देने आया हूं यहां पे। लोग अभी मैं कुछ इंटरव्यू मैंने दिया तो मैं यूट्यूब वगैरह पे कुछ कमेंट पढ़ रहा था, अरे ये कैप्टन हरियाणा का है, कैप्टन दिल्ली का है, ये यहां क्या करने आया है? अरे मैं हरियाणा दिल्ली का हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। सबसे पहले मैं इस देश का अभिन्न अंग हूं। मैं जितना हक आप लोगों को त्रिपुरा में है, उतना ही हक मुझे भी त्रिपुरा में है। आज हमारे आदरणीय जो पूर्व मुख्यमंत्री साहब है बिप्लब देव जी, वो हरियाणा के प्रभारी बने हुए हैं। हरियाणा वाला तो कभी उनको नहीं पूछता कि भाई तुम तो त्रिपुरा के हो, आप यहां क्या करने आए हुए हो। जितना हमारा फौजी भाई बहन है वो बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है, कोई चाइनीज बॉर्डर के ऊपर है, कोई नेपाली बॉर्डर के ऊपर बैठा है, कोई पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर बैठा है, कोई बांग्लादेश बॉर्डर पे बैठा है, क्या उनसे कोई सवाल जवाब करता है कि भाई तुम तो बिहार के हो, तुम यहां क्या करने आ गए? तुम तो पंजाब के, तुम यहां क्या करने आ गए? तुम राजस्थान के, तुम यहां क्या करने आ गए? ये हमारा भारत है, ये हमारा देश है, और हमारी आइडेंटिटी भारत से, हिंदुस्तान से हमारी आइडेंटिटी। और जो हमारा जो जनजाति है, जनजाति जो है इंडिजिनियस पीपल, ये हमारे भारत के मूल निवासी हैं। इनको बचाने का, इनके सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट करने का हर एक इंसान का दायित्व है। इसलिए उस दायित्व को निभाने के लिए मैं त्रिपुरा में आया हुआ हूं। और ऐसा नहीं है कि अब बहुत से लोग कहेंगे त्रिपुरा ही क्यों चुना, दूसरा भी चुन लेते, मेरी मर्जी। मैं त्रिपुरा से स्टार्ट कर रहा हूं इस चीज को। सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, हर एक आदमी का सपना होता है रोटी कपड़ा और मकान, सबसे जरूरत होता है। लास्ट ईयर का मैं एक वाक्य मैं बताना नहीं चाहता था आपको। मैंने एक मुहिम स्टार्ट किया जिसके अंदर मैंने जो स्किल सेक्टर काउंसिल है, जो इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफी सारा, और एनएसडीसी के माध्यम से मैं यहां पे तिपरासा को, एलोन सिर्फ तिपरासा को 23,000 हर साल का एम्प्लॉयमेंट देने का मैंने वायदा किया था। यहाँ पे 23,000 एम्प्लॉयमेंट, जिसमें से 8,000 एलोन एनएसडीसी जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वो उसमें दे रहा था। और जो 8,000 जो बच्चा जो हमारा तिपरासा का है, उनको फॉरन में जॉब विद मिनिमम सैलरी ऑफ 1.5 लाख। क्यों उस फाइल के ऊपर बैठे? Why the system is sitting on that file from the last 4 months? तर्क आ रहे हैं कि उनका ये। फिर एक हमने मीटिंग किया, जो स्किल सेक्टर काउंसिल, टेलीकॉम स्किल सेक्टर काउंसिल, ऑटोमोबाइल स्किल सेक्टर काउंसिल और काउंसिल के लोग आए हुए थे, उनके साथ मीटिंग हुआ। उन्होंने बोला हम स्टाम्प पेपर पे लिख के देते हैं, हम आपके बच्चों का यहाँ पे 15,000 बच्चों का मिनिमम हम यहां से हर साल का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। उस फाइल के ऊपर बैठ गए। अरे जिस गरीब के घर के अंदर चूल्हा नहीं जलता, वो जो ड्रग्स के अंदर जो युवा चला गया, क्या आप उसकी सुध लेते हो? अगर कोई आपको, आपके बच्चे को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, क्या बुराई है उस चीज में? आपको फाइल पे नहीं बैठना चाहिए, आपको उस चीज के अंदर प्रोग्रेसिव होना चाहिए। आपकी जो थिंकिंग है वो ब्रॉडन होनी चाहिए। नैरो माइंडेड से काम नहीं चलेगा, आपको आउट ऑफ बॉक्स निकलना पड़ेगा। आप यहां बैठ के सोचते हैं मैं, हमारे स्टेट में दिल्ली जैसा डेवलपमेंट हो, फिर उसके बाद किसी ने, मैंने कमेंट पढ़ा, उसमें लिखा हुआ, अरे बाहर का कंपनी लेके आ रहा है कैप्टन, बाहर का कंपनी आएगा तो हमें क्या मिलेगा, हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। किसने बोल दिया भाई ऐसी बातें? दिल्ली में जाइए, G20 समिट होने वाला है, दिल्ली को मोदी जी ने चमका रखा है एक विश्व पटल के ऊपर। मोदी जी एक वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि पूरा विश्व हमारा कुनबा है, और वो इनवाइट करते हैं। क्यों वहां पे G20 समिट के अंदर पूरे विश्व के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो क्यों आ रहे हैं वहां पे? किस लिए आ रहे हैं वो? कि हमारा जो एक इंटरनेशनल कॉपरेशन है, चाहे वो कल्चर के अंदर हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे बिजनेस में है, चाहे जीडीपी ग्रोथ में है, चाहे HDI ग्रोथ में, वो चीज बढ़े और हम आपस में सहयोग करके एक जो कुनबा है, जो विश्व का पूरा कुनबा है, उसको हमें एक साथ लेकर डेवलपमेंट की बात करें। अदरवाइज मोदी जी को क्या पड़ा है? पहले भी प्रधानमंत्री आए जो मौन रहते थे, कुछ बोलते ही नहीं थे, उन्होंने कौन सा डेवलपमेंट कर दिया देश का? लेकिन एक प्रधानमंत्री आया जो वाइब्रेंसी की बात करता है, सबको साथ लेके चलने की बात करता है, सबके विकास की बात करता है, तो उससे सीखिए कुछ। तो अगर जब तक आप देखिए त्रिपुरा में कौन सा इंडस्ट्री आ गया, यहां पे बंगाल में टाटा गया था एक बार, टाटा को ममता जी ने मना कर दिया कि आप चले जाओ, सिंगूर वाला जो कांड जो हुआ था,
आज तक वेस्ट बंगाल में कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं आया। उसका नुकसान किसको हुआ? एक आम आदमी को। वहां पे जिसके बच्चे ने इंजीनियरिंग किया था, वो सोच रहा था टाटा का प्लांट आएगा, मेरे बच्चे को रोजगार मिलेगा, नहीं मिला। कोई दूसरा दुकान वाला था, वो सोचा मेरी दुकान यहां पे खोलूंगा मैं, यहां पे इतना एम्प्लॉय काम करेगा, मेरे को रोजगार मिलेगा, नहीं मिला। और वहां पे इतने लोग थे, सोचे डेवलपमेंट होगा, हमें यहां पे ये मिलेगा, वो मिलेगा, नहीं मिला। नुकसान किसका हुआ? आम आदमी का नुकसान हुआ। कि किसकी आड़ में हुआ? पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ा, वो गंदी डर्टी पॉलिटिक्स। आई डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ डर्टी पॉलिटिक्स ओवर हियर। मैं शुक्रगुजार हूं हमारी जो आदरणीय जो चेयरपर्सन है टीआरपीसीएल की मैडम पातल कन्या जमातिया जी, कि इन्होंने मुझे इतना रिस्पेक्ट दिया, मुझे यहाँ पे बुलाया कि भाई आप आइए, आप हमारा टीआरपीसीएल के लिए हमारे लिए कुछ कीजिए आप। तो मैं हाथ जोड़कर आज उनका अपने तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे बारे में जाना, मेरे से बात हुआ। उनका ये जो मैडम बता रही थी पोलो टावर के अंदर हमारा इवेंट था, वो इवेंट मैंने कराया। आज तक पूरे त्रिपुरा में किसने टीचर्स के बारे में सोचा है? कल हमारा शिक्षक दिवस है, टीचर्स के बारे में कौन सोचता है? लेकिन फिर भी मैं वहां हरियाणा से बात करके ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी को पूरा जितना हमारा अगरतला का सरकारी चाहे गैर सरकारी जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, प्रिंसिपल, उनको बुलाया। उनको एडीसी से हमने बुलाया, जो हमारे जो ट्राइबल स्कूल्स के जो टीचर्स, प्रोफेसर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उन लोगों को, कि उनको साइकोलॉजी, बिहेवियर के ऊपर हमने उनको ट्रेन किया। किस लिए? कि वो जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, जो हमारा एसेट है, हमारा जो त्रिपुरा का और हमारे त्रिपुरासा को, वो एक सही उनको डायरेक्शन दे सके, दिशा और दशा दे सके, अच्छी दिशा और दशा दे सके यहाँ पे। तो मैं आज यहाँ पे आया, मैडम के अपना इन्होंने रिक्वेस्ट किया, और वो भी मुझे फेसबुक के माध्यम से पता चला। मेरे किसी दोस्त ने बताया मुझे कि आपका देखो कोई वो मैडम पाताल कन्या जी ने आपके लिए इतना कुछ लिखा। तो मेरा फर्ज बनता है, मैं हमेशा रिस्पेक्ट देना जानता हूं, मैं कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। तो मैं रिस्पेक्ट के नाते, और ये हमारी बड़ी बहन है, मैंने इनके बारे में पढ़ा और देखा मैंने 2014 से, उससे भी पहले से ये क्रांतिकारी हैं, ये आप लोगों के लिए, इंडिजियस लोगों के लिए लड़ रही हैं। तो हम सभी लोगों को इनका सहयोग करना चाहिए, इनको बढ़ाना चाहिए, इनको आगे लेके। और रही बात टीआरपीसीएल की, तो मैं अभी मैनेजर साहब से बात कर रहा था टीआरपीसीएल का कि हमारा कितना रेवेन्यू है और प्रॉफिट कितना है। तो रेवेन्यू की बात छोड़, रेवेन्यू तो बहुत कोई लोग कमा लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट की बात होती है तो प्रॉफिट नहीं है हमारा टीआरपीसीएल में। जबकि जो टीआरपीसीएल है एक अहम डिपार्टमेंट है, जैसे मैडम ने बताया कि जहां पे जो डिपार्टमेंट, जो संस्था आपका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की बात करे और लोगों को सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दे, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन द लास्ट क्यू, तो वो डिपार्टमेंट बहुत अहम होता है, बहुत क्रिटिकल डिपार्टमेंट होता है। इसी टाइप से जो टीआरपीसीएल है, मैंने पूरा टीआरपीसीएल के बारे में मैंने पढ़ा, मैंने देखा कि जो चीजें हम एडीसी में करते हैं, सेम चीजें हम टीआरपीसीएल के माध्यम से कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे रिहेबिलिटेशन भी है और यहाँ पे आपका प्लांटेशन भी है। और हमारा जो त्रिपुरासा कम्युनिटी है और हमारा जो त्रिपुरा स्टेट है, बीइंग एन एग्रीरियन काइंड ऑफ इकोनॉमी, जो कि पूरी मूलभूत जो आपकी कृषि के ऊपर निर्भर होती है, जहां पे चाहे आप रबर प्लांटेशन, अगर वुड या कोई भी चीज लगा लीजिए, तो वहां पे डेवलपमेंट का बात कर सकते हैं, डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे, किस वे में अटैच हो पाऊंगा टीआरपीसीएल के साथ, लेकिन मैं आज आप लोगों के माध्यम से ये मैडम को बताना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल खुले दिल के साथ, अपनी आत्मा के साथ, अपने सुविचार के साथ, अपने कमिटमेंट के साथ, मैं मैडम के अच्छे विचारों के साथ और टीआरपीसीएल के साथ खड़ा हूं। जो भी इनके मन में आएगा, जोन सी ये मुझे जिम्मेवारी देना चाहेंगी, मैं वो जिम्मेदारी लूंगा और भली भांति निभाऊंगा। और जो चीज मैं टीटीए-डीसी में नहीं कर पाया, वो चीज मैं टीआरपीसीएल के माध्यम से करूंगा। और ये मैं कमिटमेंट कर रहा हूं, आज मीडिया है सामने यहाँ पे, कि आज हमारे यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है टीआरपीसीएल में। अगले 4 से 5 साल में टीआरपीसीएल सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला पीएसयू बनेगा हमारा। दिस इज माई कमिटमेंट, दिस आर माई वर्ड्स, यू कैन नोट इट डाउन टुडे एंड यू कैन आस्क मी आफ्टर 4 years कि कैप्टन साहब आपने 4 साल पहले ये चीज बोली थी, आज 4 साल हो गए हैं, आज हमारा टीआरपीसीएल कहां खड़ा है। तो हमें इसको, टीआरपीसीएल को, इस डिपार्टमेंट को विश्व पटल के ऊपर लेके जाना है। सिर्फ हम, यही नहीं है कि हम सिर्फ बात यहां की करें। आपका वो मोदी जी को मैंने एक बार सुना था कि अपना थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। जब तक आपका विजन जो है वो एक बड़ा विजन नहीं होगा,
तो आप यहाँ पे जो हमारा जो है जो तिपरासा भाई बहनों के डेवलपमेंट का बात नहीं कर सकते आप, किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते। लोग कहते हैं, बहुत लोगों ने कहा, मीडिया में आता है, मैं भी पहले सोचता था कि जो हमारी सरकार है, जो त्रिपुरा गवर्नमेंट है या भारत सरकार, बड़ी निर्दयी किस्म की सरकार है। मैंने बड़ा क्रिटिसाइज किया मोदी जी को और बड़े बड़े नेताओं को, बहुत मैंने क्रिटिसाइज किया उस चीज में। लेकिन जब मैं दिल्ली में गया, जब मैं मिनिस्ट्रीज में मिला और जो खासतौर पे नीति आयोग में और बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में मिनिस्टर्स के साथ मेरा मुलाकात हुआ, सेक्रेटरीज के साथ में, जब मैंने देखा कि स्कीम्स इतनी है गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, अगर वो स्कीम अगर सही ढंग से लागू हो जाएं तो आदमी जो है, जो आम जन है, वो खुद सामाजिक और आर्थिक सशक्त हो जाएगा वो। लेकिन हमारा क्या है, उस चीज को पॉलिटिकली लेके चल पड़ते हैं। वो कैप्टन के थ्रू आया, क्यों आया? कैप्टन सीके जमातिया से बात करता है, क्यों सीके जमातिया से बात करता है? सीके जमातिया तो बागमा से चुनाव लड़ने वाला था, पॉलिटिकल रंग दे दिया। अरे सीके जमातिया जैसा अफसर त्रिपुरा में मिलना ना के बराबर है। ही इज एन एसेट फॉर त्रिपुरा, ही इज एन एसेट फॉर द TTADC। रिस्पेक्ट हिम, रिस्पेक्ट हिज नॉलेज, रिस्पेक्ट हिज विजन। You should respect that kind of officers, those who are coming over here and giving the dedication and each and everything. मैं ज्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहूंगा बिकॉज और ये अगर मैंने बोल दिया ज्यादा कुछ तो पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो जाएगा ADC का। आई डोंट वांट टू गो बियॉन्ड दैट काइंड ऑफ लेवल। मैं आज भी जितना जो रिस्पेक्ट है वो रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन बस मैं हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूं कि जिस जनता ने आपको चुन के भेजा है उस वोट का रिस्पेक्ट कीजिए, उनका जो सपना है उसका रिस्पेक्ट कीजिए, उनका लोगों का, आम आदमी का जो एस्पिरेशन है उसका रिस्पेक्ट कीजिए। जो आपने प्रॉमिस किया है, जो आपको जो भी पैसा जो मिल रहा है वहां से 30,000, 32,000, 50,000, 1 लाख रुपया, वो उस आम आदमी की वोट की वजह से आपको मिल रहा है। अदरवाइज यू आर नॉट कैपेबल टू अर्न एनीथिंग। लेट मी टेल, दे आर नॉट कैपेबल टू अर्न नॉट इवन अ सिंगल पेनी। That is just because the people, they have voted for them, they had made them successful to win, and that's the reason they're sitting on that chair. So they should respect the chair, they should respect the sentiment of the public, and they should work for the public with whole heart, with whole commitment. That's the reason. And we want to see our Tripura on apex of the world map. We want to see our Tripura growing. That's the most important thing. Thank you very much. सर एक प्रश्न है सर जी। आप जो